ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 39ତମ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ ବୀମା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେଘଦୂତ ହୋଟେଲଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ ବୀମା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର 39ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଶହୀଦ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଳକା ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ବ୍ରଜରାଜନଗର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଖିଳ ଭାରତ ବୀମା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସାଥୀ ଧର୍ମରାଜ ମହାପାତ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବୀମା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସାଥୀ ତ୍ରିନାଥ ଦୋରା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଲେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବିପଦରେ ଅଛି। ବୀମା ଶିଳ୍ପ ଆଜି ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବୀମା ଶିଳ୍ପରେ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବା, ଶିଳ୍ପର ଅଂଶଧନକୁ ବଜାରରେ ବିକିବା, ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରର ପଲିସିଧାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଉପାଦାନକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ବୀମା ଏକ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ତା'ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପରେ ସରକାର 18 ଭାଗ GST ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପଲିସିଧାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଯାହା ପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତ ବୀମା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଲଗାତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ଭାତୃପ୍ରତିମ ତଥା LIC ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସାରଙ୍ଗଧର ମିଶ୍ର, ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ଅନନ୍ତ, ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଭାତ ପୃଷ୍ଟି, ଝଷକେତନ ସାହୁ, କ୍ଲାସ୍ 1 ଫେଡେରେସନର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, NFI, FWI ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିନାଥ ଗୋଆଲ, ସିଆରାମ ଦାସ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମେହବୁବ ମହତାବ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 300 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଦର୍ଶକ ଆସିଛନ୍ତି। ଖୋଲା ଅଧିବେଶନ ପରେ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଦର୍ଶକମାନେ 2 ଦିନ ରହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଜୀବନ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଲପାହାଡ଼ ମିରର ଥିଏଟର ତରଫରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିବେଶନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରତ୍ନାକର ପ୍ରଧାନ, ଅରୁଣ ଚୈନୀ, ଗୋପୀନାଥ ମିଶ୍ର, ଆଶିଷ ଶୁକ୍ଲା, ନବୀନ ସିହ୍ନା, କୃପା ମିଶ୍ର, ଜଗଦେଶ୍ୱର ନାୟକ, ବରୁଣ ପଟେଲ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଷାନ, କନକ ନାୟକ, ସାବିତ୍ରୀ ଡୁଡୁମ ଓ ଆଉ ଅନେକ ସାଥୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ବେଳେ ବେଦବ୍ୟାସ ହୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି SDLIର 39ତମ ଆନୁଆଲ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଆପଣ ରିସେପ୍ସନ୍ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ देश लगे खाली बीमा कर्मचारी नुह साधारण जनमानस भी जेन समस्या देखा जाए तार लड़े लगे गोटे यूनाइटेड फोरम रे आंदोलन करा गोटे प्रस्ताव आई कौन कहे ताकि आप लीड करेंगे। आज आम झारसुगुड़ा होटेल जो 39तम अधिवेशन आरंभ होती एनुअल अधिवेशन निश्चित भाव LIC विषय आगु तो समस्ते छुआ बुढ़ा पर्यटन समस्ते जानी LIC विषय मुझे जानी किंतु आज अधिवेशन में मुझे 2 घंटा रही बहुत किसी जानवा पाइली LIC विषय एमती भी LIC समस्त भरोसा कर आज देश एमती भी लोक गोटे भी नहांती जे अन्य कौन जते संस्था भी आसुच्च मो जानवर एटा भरोसा करें जिते LIC करेंगे आगक करेंगे आउ जो आपण कहते देशर कथा आज तो आप देखिए जे मंच उपर आम ताऊपर बहुत चर्चा होती निश्चित भाव से उपस्थित थी आगक जहाँ भी हम आम जहाँ भल हम आम देशपाई आम लोक मान जहाँ भल हम आम निश्चित भाव से प्रति दृष्टि देवु आगक जहाँ एमती आंदोलन हम सभा समिति हम आम निश्चित भाव से पार्टिसिपेसन करूँ आम देश लोक मैंने केमती विभिन्न प्रकार सुख सुविधा पाइबे आगक केमती भल रही निश्चित भाव चेष्टा। धन्यवाद। आउ भी जेन समस्या अच्छे जेनरे श्रमिक माने विशेषकर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास ये माने जेन माने पेशी हो भाई आप अनुभव कर व्यापक चर्चा भी आज कर किंतु ताके रूपायन करवार लगी लोक मान पहुँचवा लगे प्रस्ताव भी आसीचे ये मंच को ताके आगामी दिन रूपायन करवा लगे आप काण कार्यक्रम रहा प्रति वर्ष आलोचना करेतु आम केवल LIC गोटे कर्मचारी नुहे आम देशर गोटे साधारण नागरिक तो गोटे साधारण नागरिक देश में तार जेन आक्रमण हो
तार उपरे भी आम विस्तृत भाव आलोचना कर आज सम्मेलन में आम आलोचना कर देश में मुख्य जेन समस्या श्रमिक मान सामने गोटे साधारण नागरिक सामने से एकता देशर एकता को भंग करवा लगे बहुत प्रोग्राम चलती विरुद्ध आम संग्राम कर कि तार सागे सागे जेन प्रश्नटा कले जे आज श्रमिक मैंने जेन पेशी होती पेशी होती देश में गोटे पुंजीवादी अर्थनीति अच्छी और पुंजीवादी अर्थनीति विरोध में आम संग्राम 1991 मसीह चलती आम कौन दल विरोध में आम संग्राम नहीं आम नीति विरोध में 1991 लगातार भाव संग्राम कर आज आम देखु देश जनसाधारण उपरे जेन आक्रमण जो टैक्सर ना हो जीएसटी ना हो प्राइवेटाइजेशन ना हो घरेकरण उदारीकरण ना हो ता विरुद्ध में ये देश श्रमिक मैंने एकजुट होकर संग्राम कर आज सैमसंग कर्मचारी संग्राम कर आज भाईजाग स्टील प्लांट कर्मचारी संग्राम कर तो से संग्राम में आम एकजुट होकर समस्त सागर सामिल होकर ये भारत जेन आर्थिक नीति विरुद्ध में आम भविष्य ओडिशा में आम संग्राम आम जारी रखू एलआईसी कर्मचारी साधारणतः मैंने संग्राम में आम धन्यवाद। संपत्ति आधार जिसे हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं उसका निर्माण किया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जीवन बीमा निगम दुनिया की ऐसी एकमात्र संस्था है जो देश की सरकार बाजार से कर्ज लेती है उस कर्ज का 25% से ज़्यादा हिस्सा एलआईसी ने एकत्रित करके जुटाया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज उसी भारतीय जीवन बीमा निगम जिसने देश के अधोसंरचना या देश की हर ईंट के निर्माण में अपना एक ईंट लगाया, आज उसको निजीकरण के रास्ते पर ढकेलने की कोशिश होती है। उसका विनिवेशीकरण किया गया, उसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने ये फैसला किया, ये ऐलान किया कि वो आएंगे तो इस देश के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम को और ज़्यादा निजीकरण के रास्ते पर ढकेलेंगे। हम समझते हैं ये केवल एलआईसी के निजीकरण की बात नहीं है, देश के संसाधनों के निजीकरण की बात है और ये अंततः जाकर भारत की आर्थिक राजनीतिक संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के लिए खतरा है। तो हम इस पर विमर्श कर रहे हैं कि निजीकरण के खिलाफ अब तक जो लड़ाइयाँ हमने लड़ी, कैसे उस लड़ाई को और व्यापक बनाया जाए ताकि ये एलआईसी हमारा और आपका है, ये अदानी अंबानी का एलआईसी नहीं है, उसकी हिफाजत के लिए जनता को लामबंद की जा सके। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, भारत के अंदर भारत सरकार ने ये जो जीएसटी का कानून बनाया, एलआईसी की प्रीमियम या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% तक का जीएसटी भारत सरकार वसूल रही है। बीमा जो है वो आवश्यकता है, विशेष करके कोविड के बाद देश ने ये महसूस किया कि आज सबको बीमा के जोखिम की सुरक्षा की जरूरत है। उस रोशनी में इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लेना, ये सबसे बड़ा हम समझते हैं देश के बीमाधारकों जनता के साथ अपराध। और इसीलिए ये जो सवाल है, इसको लेकर ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के नेतृत्व में पूरे देश में एक अभियान चला। हम सारे राजनीतिक पार्टियों के लोगों से मिले, हर देश के वित्त मंत्रियों से हम मुलाकात किए। पिछला जो संसद का सदन था, हमें इस बात की खुशी है, देश के इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के 151 से ज़्यादा जो सांसद थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया, इस बात की मांग की। संसद के अंदर हमारी ये जो विचार है बीमा धारकों से या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी खत्म होना चाहिए, इसको लेकर एक बड़ा जनमत तैयार हुआ। जीएसटी काउंसिल में भी इस पर बातचीत हुई और मैडम निर्मला सीतारमण ने अभी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, 9 अक्टूबर को उसकी दोबारा बैठक होनी है, इस पर विमर्श होना है। हम समझते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी समाप्त होना चाहिए। और ये जो जन अभियान हमने चलाया, पूरे देश में बड़े बड़े अखबारों ने हमारे इस मांग के समर्थन में जो है संपादकीय तक लिखे। आज भारत की जनता के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी खत्म होना चाहिए, ये सवाल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल के रूप में विकसित हुआ है। इस आंदोलन को हम कैसे विकसित कराएं, इस पर भी हम विमर्श कर रहे हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम वो ये समझते हैं कि आज इस देश के अंदर लोकतंत्र, संविधान, ये सब हमारा आशीर्वाद की संगठन है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन, इसका मंडलीय इकाई का सम्मेलन हुआ। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के अंदर देश के साथ साथ हमारे जनता के हर हिस्से, चाहे वो छात्र हो, मजदूर हो, नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, और इस सरकार की जो नीतियां हैं अभी मौजूदा केंद्र सरकार की, उनकी नीतियों का जो दुष्प्रभाव है समाज के व्यापक हिस्से में, उस पर विमर्श करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हम जिस संस्था में काम करते हैं, इस संस्था का उदय हुआ 1 सितंबर 1956 में, जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब 1956 में बना, एलआईसी
के निर्माण के साथ LIC के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, पहला लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस समय जो देश के अंदर 245 निजी कंपनियां थी, उन्होंने जो बीमा धारकों के साथ धोखा किया था, छल किया था, बीमा धारकों को दावों का भुगतान नहीं किया, उनका पैसा हड़प लिया था। जब LIC का निर्माण हुआ तो पहला उद्देश्य ये था कि देश के बीमा धारकों की हितों की सुरक्षा करते हुए उनके धन की सुरक्षा करना। दूसरी बात जो है उद्देश्य तय किया गया था कि भारत ऐसा एक देश है जो असमानता बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर है, तो जोखिम की सुरक्षा की इस देश की जनता को सबसे ज़्यादा जरूरत है, उस भारत की जनता तक बीमा की पहुँच उपलब्ध कराना। और तीसरी सबसे बड़ी आवश्यकता ये थी कि आज़ादी के बाद भारत को विकास के रास्ता तय करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता थी, तो बीमा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए देश की जनता की जो बचत एकत्रित होती है, जिसे हम डोमेस्टिक सेविंग या घरेलू बचत कहते हैं, उस घरेलू बचत को एकत्रित करके दीर्घकाल के लिए देश में अधोसंरचना के विकास के लिए वो पूंजी जुटाने में मदद करते हैं। हमें फक्र है इस बात का कि 1956 से लेकर 2024 तक की इस यात्रा में सार्वजनिक क्षेत्र की जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, उसने न केवल देश की वो आम जनता जिस जनता को न्यूनतम प्रीमियम पर अधिक बीमा जोखिम की सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको बीमा की जोखिम की सुरक्षा उपलब्ध कराई। दूसरा, देश के घरेलू जनता के घरेलू बचत को एकत्रित करके देश में अधोसंरचना के विकास के लिए जो साधन चाहिए था वो साधन उपलब्ध कराए। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज भारत के अंदर सड़क से लेकर ऊर्जा और यहाँ तक कि चंद्रमा तक, अंतरिक्ष तक भारत ने जो प्रगति की यात्रा या सोपान तय किए हैं, LIC एकमात्र संस्था है जिसने 33 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा की राशि देश के अधोसंरचना के निर्माण के लिए योगदान दिया। दूसरी बात, केवल 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी पर जिस भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्माण हुआ था, भारतीय जीवन बीमा निगम ने उस 5 करोड़ की पूंजी पर आज 53 लाख करोड़ रुपया से अधिक का संपत्ति आधार, जिसे हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, उसका निर्माण किया। तीसरी जो % GST लेना, ये सबसे बड़ा हम समझते हैं देश के बीमाधारकों जनता के साथ अपराध। और इसीलिए ये जो सवाल है, इसको लेकर ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेतृत्व में पूरे देश में एक अभियान चला। हम सारे राजनीतिक पार्टियों के लोगों से मिले, हर देश के वित्त मंत्रियों से हम मुलाकात किए। पिछला जो संसद का सदन था, हमें इस बात की खुशी है, देश के इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के 151 से ज़्यादा जो सांसद थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया, इस बात की मांग की। संसद के अंदर हमारी ये जो विचार है बीमा धारकों से या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST खत्म होना चाहिए, इसको लेकर एक बड़ा जनमत तैयार हुआ। GST काउंसिल में भी इस पर बातचीत हुई और मैडम निर्मला सीतारमण ने अभी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, 9 अक्टूबर को उसकी दोबारा बैठक होनी है, उस पर विमर्श होना है। हम समझते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST समाप्त होना चाहिए। और ये जो जन अभियान हमने चलाया, पूरे देश में बड़े बड़े अखबारों ने हमारे इस मांग के समर्थन में जो है संपादकीय तक लिखे। आज भारत की जनता के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST खत्म होना चाहिए, ये सवाल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल के रूप में विकसित हुआ है। इस आंदोलन को हम कैसे विकसित कराएं, इस पर भी हम विमर्श करते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम वो ये समझते हैं कि आज इस देश के अंदर लोकतंत्र, संविधान, ये सब हमले की जगह है। और इसीलिए इस देश में जो नफरतों का दौर, धर्म विशेष के, संप्रदाय विशेष के, समुदाय विशेष के खिलाफ जो घृणा और नफरत की राजनीति है और हर चीज को जो है निजी हाथों में सौंपने की जो कोशिश हो रही है, भारत को केवल और केवल चंद पूंजीपतियों, सरमाएदारों यानी अदानी अंबानी के भारत बनाने की जो कोशिश हो रही है, जंगल खत्म किए जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, आदिवासियों की संपदा पर हमला हो रहा है, इस देश के जनता के पूंजी से, जो श्रम से जो सार्वजनिक अधोसंरचना विकसित हुई है, उस चीज को लुटाने का जो खेल हो रहा है, उसके खिलाफ देश में लोकतंत्र, संविधान, जनतंत्र, जनवाद और भारत की विविधता, धर्मनिरपेक्षता और बहुलता की हिफाजत के लिए, और देश के ये जो संपदा है जिसकी असली मालिक भारत की जनता है, उनसे जो लूट का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, उनकी आक्रामक नीतियों के खिलाफ कैसे एक व्यापक जन आंदोलन, एक जन संघर्ष को विकसित किया जा सके, उसमें व्यापक जनता की भागीदारी विकसित किया जा सके, उस पर भी सम्मेलन में विचार विमर्श हो रहा है। और हमें उम्मीद है भारत, ये भारत जिस भारत को आज़ादी के आंदोलन के जरिए
संविधान में सामाजिक न्याय, स्वतंत्र आत्मनिर्भर आर्थिक विकास, बहुलता, विविधता और धर्मनिरपेक्षता जिसकी बुनियाद पर यह भारत, ये इंडिया बना, उसकी जो बुनियादी आत्मा है उस पर जो चोट पहुंचाई जा रही है उसके खिलाफ एक व्यापक जनसंघर्ष विकसित होगा। उसमें कैसे हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, इस पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी और आगामी आंदोलन पर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे।